So yes, very good evening, warm welcome in this special live today. Yes, so just see if I am audible and visible. Yes, I am. Okay, so here we go. So very warm welcome in this very special live today. We'll be discussing something regarding what is stopping you. कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको रोक रही है आपके abundance को attract करने के लिए. So again a very warm welcome to all of you whosoever is joining today in this special live. Yes, so today is a beautiful evening. It's Wednesday and it's 25th of September. So let's dive deep into what is stopping you to attract the dreams in your life, what you want to achieve. So I just simply decode this particular thing. If your focus is here and there, mark my words, I'm just coming to the point without going here and there. I'm just coming to the point. So warm welcome to all of you. So to the point, the thing is, if you are not on track, if you're not focusing on self, you won't be able to attract abundance in areas of life. अगर आप यहाँ वहाँ देखने में व्यस्त हैं, इसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो then you won't be able to attract whatever you want in your life. Getting my point? So coming back to the point, अगर हम इसको डिटेल से समझे, yes, so we think in that terms कि मान लीजिए मेरी X amount of energy है, क्षमताएं हैं, power है. If I am putting that power to visualize others, दूसरे को देखने में, getting my point? It's a very deep thing. Yesterday also we got into that zone कि yes, where my focus is, So for that, try to implement something around it. Try to appreciate self. आप अपने आप को appreciate करना शुरू कीजिए. Getting my point? Try to appreciate that. So what you have to do is, instead of expecting appreciation from the people around, yes, you are doing good, you are on track. Yes, we should appreciate self. We should focus on self instead of focusing here and there. इधर उधर देखने के बजाय आज क्या करें, आज स्वयं पर फोकस करें. Can I have that commitment? Now onwards. Yes, now onwards. It's a very important thing. Yes, warm welcome and very good evening. Om Shanti to each and everyone whosoever is joining. So just be with me. It's a deep thing which we are decoding today. If I am consistently focused outside, yes, I will be able to improve outside in the sense, if suppose I am thinking of visualizing my dress, I will certainly improve that. But when it comes to improving the outside picture, then the chances of getting the things on outer shell is more. Then the chances of getting long lasting results are not there. जैसे अब इस चीज को समझिए कि आपने बाह्य तल पर बाहर के स्वरूप में आपने काम किया, yes,
बाहर के स्वरूप में काम करने से क्या हो रहा है, बाहर की चीज़ें कुछ ना कुछ इम्प्रूव होने की कोशिश करती हैं, और साथ साथ क्या हो रहा है कि हम कुछ ना कुछ रिजल्ट बाहर के लेवल पर प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं. जैसे मान लीजिए, इफ आई एम फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग माई प्रेजेंटेशन स्किल, आई विल सर्टनली बी इम्प्रूव, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ. बट वेन माई फोकस शिफ्ट टू इम्प्रूविंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ इंस्टेड ऑफ जस्ट changing my outer presentation, then the chances of getting the results which I want increase. Here we have to focus on. जैसे मान लीजिए आपने प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव की, yes, obviously you get some results, but एक लॉन्ग लास्टिंग बहुत अच्छे रिजल्ट जिससे लोगों को फेथ हो आपके ऊपर, ताकि आप जनरेट कर सकें वो डिजायर्ड रिजल्ट्स, that will reduce. So what I have to do, I have to focus all the lights जो हम दूसरे को कर रहे हैं, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ठीक रहना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए. You have to shift your focus. जो फोकस लाइट है वो आपको अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर डालनी पड़ेगी. Yes, warm welcome, very good evening. Am I making point clear? बात समझ में आ रही है? अभी क्या हो रहा है, अभी आई एम फोकसिंग एवरीथिंग आउटसाइड एंड आई एम आउट ऑफ फोकस. अब जैसे मान लीजिए आप स्टेज पे जाएं, अभी स्टेज पे जाने से क्या होता है, एवरी लाइट इज ऑन यू, व्हेन द लाइट्स आर ऑन यू, यू परफॉर्म. व्हेन एवरी लाइट इज ऑन द स्पेक्टेटर्स, तो आपको कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है. सो ये मेरे को करना पड़ेगा. एवरी लाइट ऑन माई सेल्फ मीन्स कि आई एम फोकसिंग ऑन माई डेवलपमेंट, माई अपग्रेडेशन. मैं अपने को इम्प्रूव करने के लिए कार्य कर रहा हूँ, और उस इम्प्रूवमेंट से आई इम्प्रूव ओवरऑल रिजल्ट्स. आई एम ग्रोइंग माई सेल्फ. अभी क्या हो रहा है, अभी मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम करेक्टिंग अदर्स. इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की बजाय मैं दूसरे को करेक्ट कर रहा हूँ. और अगर आप दूसरे को करेक्ट कर रहे हैं और दूसरा करेक्ट करके उसको रिजल्ट मिल जाने वाला है, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला, बिकॉज यू आर स्टक इन दैट जोन ओनली. अगर मान लीजिए आप अपने काम छोड़ के मुझे करेक्ट करने लगे, नहीं आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा बोलना चाहिए, ओके, मेरे में करेक्शन आ सकता है, दैट इज गुड थिंग, बट यू लूज योर फोकस. आपका अपने ऊपर से फोकस चला जाने वाला है, जिसकी वजह से आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे जो मिल सकते हैं. गेटिंग माई पॉइंट. किसी को हेल्प करना, किसी को अपग्रेड करने में मदद करना, दैट इज ओके, वेल एंड गुड, बट वी हैव टू फोकस ऑन सेल्फ इन ऑर्डर टू जनरेट रिजल्ट्स फॉर माई सेल्फ. और आई टेल यू वन थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. You have to take responsibility of your own life. You have to take responsibility of your family. It is as simple as that. कोई दूसरा नहीं आने वाला, मुझे उसकी जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी. और अगर मैं जिम्मेवारी नहीं उठा पा रहा हूं तो मान के चलिए कि you are stuck. Am I making point clear? इस चीज को हम समझ पा रहे बात कि अब मुझे फोकस करना पड़ेगा मुझे अपने अपग्रेडेशन में. अभी मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, देखिए, अब आप सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म उठा के देख लीजिए, आपको निरंतर ये देखने को मिलेगा, सरकारें ये नहीं कर रही, फला ये नहीं कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा है, उसका ये, दैट इज अवेयरनेस इज ओके. आप अगर आप जर्नलिस्ट हैं, यू देयर इज देन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर कि आप लोगों पे अवेयरनेस दें. But instead of doing your own work, you are putting efforts in just creating that nuisance around. Getting my point? जर्नलिस्ट वो काम कर रहे हैं, वो न्यूज़ दे रहे हैं अपनी, मुझे क्या करना है. मान लीजिए सपोज मैंने पहले भी एक जब बजट के समय पर एक पोस्ट बड़ी वायरल सब जगह हो रही थी, सब लोग ये कह रहे थे कि मैंने उसका भी जिक्र किया था किसी अपने लाइव में या किसी क्लास में कि किसी को राशन मिला, किसी को कुछ मिला. अब मिडिल क्लास फैमिली, तुम टैक्स भरो, तुम टीवी देखो, तुमको मिली डिबेट. यस,
बिलो पॉवर्टी वालों को राशन मिला और अपर क्लास वालों को मिली रिबेट, मिडिल क्लास वाले तुम टीवी देखो तुमको मिली डिबेट। यस आई रिमेंबर दैट कोट। नाउ हु सेड यू, किसने बोला कि आप मिडिल क्लास में रहो? किसने बोला? यू हैव डिसाइडेड टू बी इन दैट जोन, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप चीजें छोड़ के लग जाओ ना अपने अपग्रेडेशन में। व्हाई डोंट यू अपग्रेड योरसेल्फ? क्यों नहीं करते? अब एक ऑप्शन ये है कि अगर मेरे पास कैपेबिलिटीज हैं मैं उसको लगाऊं अपने कार्य में और मैं निरंतर आगे बढ़ूं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं हाथ पे हाथ धरा बैठा रहूं, देखूं कहीं ऊपर से कृपा बरसेगी, भगवान जी आएंगे और वो मेरा कुछ उद्धार करेंगे। नहीं भाइयों, कोई करने नहीं वाला उद्धार। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। कैन आई हैव दैट कमिटमेंट कि यस अब मैं करूंगा, अब मैं करूंगा। टेक चार्ज ऑफ इट। अपने, मैं आपको बताऊं, गाड़ी आप चला रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, क्या लगता है उसकी ड्राइविंग की कंट्रोलिंग किसी और को दे देंगे? आप किसी और को दे देंगे? विल इट बी पॉसिबल? नो, बिग नो। यू हैव टू टेक चार्ज। मैं तो वही, मैं सो रहा था, मैंने बगल वाले जो बैठा था साथी उसको मैंने दे दिया था मेरी गाड़ी चला लो। नहीं, यू हैव टू टेक चार्ज। आपको किसने बोला कि आप मिडिल क्लास में रहो? धीरूभाई अंबानी थे लोअर क्लास में, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं रहना। बहुत सारे लोग, there's so many people around। मैंने वो स्टोरी शेयर की थी सर थॉमस एल्वा एडिसन की। स्कूल से निकाल दिया गया कि ये बिलो एवरेज है, ये पढ़ नहीं सकता स्कूल में, लेकिन माँ के एक थॉट ने सब सीन चेंज कर दिया। बड़ा साइंटिस्ट बना दिया माँ के एक विजन ने। और हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसे ऐसे कोट्स बना के सोशल मीडिया पे टाइम पास कर रहे हैं। प्लीज जागृत हो जाएं। इफ यू रेजोनेट विद मी, अगर आपको लगता है कि यस आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आई विल certainly assure you, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ, इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ, एक दिन वो आने वाला है, दुनिया देखेगी आपको। It's not about only motivation which I am giving it to you. I am just giving the direction. I am just giving you the experience which I have experienced in the last couple of days. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बैठ के ऐसा शेयर कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जिससे लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव होने वाला एक्सपीरियंस होगा। बट येस, आई एम डूइंग इट। मैं वो कार्य कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। मैं भी चाहता तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहता। मैं आपको बता रहा हूं, आई केम आउट ऑफ माई डेट विच वॉज देयर एट दैट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर, इन द जस्ट बिगिनिंग ऑफ माई करियर, उस समय। एंड नाउ आई एम हेल्पिंग पीपल टू कम आउट ऑफ देयर सिचुएशंस। यस, कमिंग आउट ऑफ देयर डेट, building corpus for themselves, working for themselves, taking charge of their life. आप जो सोच लेंगे वो होने लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट लेवल जो जहाँ गड़बड़ी हो रही है। अब एक तो ये कि पहला फोकस मैं अपने आप पर ले आऊँ, मुझे करना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं फोकस ले तो आया अपने आप पर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता, मैं कैसे करूँगा, मैंने कल बहुत कोशिश की थी, मुझे मिला ही नहीं। या कई बार हम ऐसे जोन में भी आ जाते हैं, मैं तो बहुत सारे प्रयास कर रहा हूँ, मेरे से हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। कब तक नहीं होगा? मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो खेल रहा है, जो गेम के अंदर है, या तो वो जीतेगा या हारेगा। और जो खेल ही नहीं रहा, गेम के बाहर बैठा है पवेलियन में, जीतने का ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। आप अगर निरंतर प्रयास कर रहे हैं, आज नहीं तो कल आप अवश्य सफल होंगे। सफल होंगे आप अवश्य। निरंतर कार्य करना पड़ेगा। कोई बात नहीं
किसी मैं और अपनी शेयरिंग करता हूँ, आप समझ सकते हैं। बहुत क्लोज हम थे, रूम पार्टनर हमारा। अब वो एक बार पढ़ता था, उसको एक बार में याद हो जाता था, मुझे 3 बार पढ़ना पड़ता था तब मुझे याद रहता था। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे उस समय, या तो मैं निराश हताश डिप्रेशन में चला जाता, अरे नहीं मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, इसको एक बार में याद हो जाता, मुझे याद ही नहीं होता। बट दूसरा थॉट जिसको मैंने अप्लाई किया है, कोई बात नहीं, अगर 3 बार पढ़ने में याद हो रहा है तो मैं 3 बार पढ़ूंगा, नो वरीज। और एक बार मैंने उसको चैलेंज कर दिया था कि इस सब्जेक्ट जिसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, ऑप्थेल्मोलॉजी, आई के सब्जेक्ट में, मैंने कहा था कि आई विल स्कोर मोर मार्क्स देन यू इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। यस, आई स्कोर मोर मार्क्स देन दैट पर्सन, जिसको एक बार में याद हो रहा है। मैं बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ, इट्स जस्ट अ थॉट पैटर्न विच यू स्टार्ट जनरेटिंग। आप अगर आज से कह देंगे मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं बहुत एफर्ट लगा रहा हूं, यूनिवर्स कहेगा तथास्तु, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसको नहीं मिलेगा। अब इसके बजाय मैंने पहले भी कहा, मेरा स्वास्थ्य खराब है, इसको आप ऐसे बोलना शुरू कीजिए कि आई एम इंप्रूविंग, मीन्स माई हेल्थ इज इंप्रूविंग। सेम थिंग बट पुट इन अ डिफरेंट वे। दैट इज अ स्कैरसिटी थॉट, मेरा स्वास्थ्य खराब है but my health is improving, this is abundant thought, I am growing, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे, no, I am improving day by day, I will achieve results day by day, every day I am achieving results, getting my point? I know बात करना, आपको लगेगा कि बात करना तो बैठ के भाषण करना तो आसान है, no, absolutely no. When you start implementing the things, then it will also become an easy thing for you. और मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं बोल रहा हूं, मेरे लिए भी आसान नहीं था एक समय पर, बट वॉट आई डिड वॉज, मैंने कहा कि नहीं, कब तक नहीं होगा, कब तक मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। यस, ये माई रिजल्ट्स आर इंप्रूविंग डे बाय डे। और सिर्फ कहने मात्र नहीं, स्टार्ट इंप्रूविंग, स्टार्ट फीलिंग दैट यस आई एम गेटिंग रिजल्ट्स, माई रिजल्ट्स आर इंप्रूविंग डे बाय डे। यस, ट्राई टू फील दैट, व्हाई नॉट, व्हाट इज द इशू, बैठ जाओ, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। मे बी ऐसा भी होता है कई बार, universe is just checking your patience, and if you fail in that exam, you won't be able to get results in life, whole life. Am I making point clear? बात आ रही है समझ में? अगर आपका एग्जाम है पेशेंस का और आप उस पेशेंस के एग्जाम में फेल हो जाते हैं, you won't be able to get the results. जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, इस चीज को समझिए। Yes, it is very important. It is very important to be positive. I tell you, being positive will change the whole scenario. अब मैं उदाहरण कई दे देता हूँ, just be with me. आपका एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो गई, इस फला तारीख को आपको एग्जाम होगा, मान लीजिए मे बी 30th सितंबर से आपका एग्जाम है, this 30th. Now you are preparing for that exam. And what happens is, on 28th of September, there is a declaration कि yes, exam एक महीना postpone हो गया है. Now, what I have to do? अब जो कम पढ़ने वाले, जो जोन में रहने वाले, अरे ठीक है, एक महीना मिल गया, अभी आराम करो, पढ़ लेंगे। बट जो ग्रोथ माइंडसेट वाला है, what he is thinking कि I am getting one more month, एक महीना मोर ज्यादा मिल गया मेरे को, आई विल इम्प्रूव माई रिजल्ट। बट दूसरा क्या सोच रहा है, अरे ये तो आराम का टाइम मिला है। गेटिंग माई पॉइंट, हाउ यू आर टेकिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। इफ आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट टुडे, मुझे आज रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो 2 ऑप्शन है, नहीं मेरे को से तो नहीं होगा, आई विल स्टॉप डूइंग एफर्ट्स फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, मैं आज से एफर्ट लगाना कम कर दूंगा। दैट इज वन अप्रोच।
The another approach is, yes, my every action is generating some result, may be small. मैंने कहा अगर आप कार्य कर रहे हैं ना और कुछ नहीं भी अगर हो रहा है, आपकी क्षमताएं बढ़ रही. जैसे मान लीजिए आप अगर कोई भी नहीं होता, अभी सुनने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला बोल रहा हूं, उससे क्या होने वाला है? क्या होगा उससे? मेरे बोलने से आई विल इंप्रूव माई सेल्फ, माई स्पीकिंग स्किल्स विल इंप्रूव, आई विल बी मोर कंफर्टेबल ऑन कैमरा द मोर आई स्पीक. भले मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, मॉनिटरी में कहूं कि नहीं मॉनिटरी, आई एम नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट्स आउट ऑफ इट, मे बी पॉसिबल. तो क्या कहेंगे हम? रिजल्ट नहीं मिल रहा हमको? नो, एवरी डे आई एम इंप्रूविंग, एवरी डे आई एम इंप्रूविंग. यस. अब किस चीज को आपको देखना है? मैंने पहले ही कहा, वेयर योर फोकस गोज योर एनर्जी गोज, वहां आपकी शक्ति जाने. अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपकी सारी एनर्जी चली गई, नहीं रिजल्ट नहीं मिल रहा, डन. आपने खुद सिग्नेचर कर दी अपने रिजल्ट्स पर कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है. यस, एम आई मेकिंग पॉइंट क्लियर? कोई बात नहीं, आज नहीं मिल रहा रिजल्ट, कल को मिलेगा. क्या समस्या है उसमें? क्या समस्या है? अब पॉजिटिविटी की बात करें, हमारे सामने शास्त्रों में एग्जाम्पल है, अर्जुन द बेस्ट धनुर्धर, उस समय के बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सब कुछ है उनके पास, बट इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने धनुष बाण रख दिया. भगवान मैं नहीं लड़ सकता. ही गॉट इनटू डिप्रेशन. दैट वाज द सिचुएशन. ऑफ डिप्रेशन वर्ड यूज नहीं करेंगे, बट ही वाज इन दैट जोन के नहीं मैं नहीं कर सकता. ये पढ़ा है, ऐसे ही हमारे साथ होता है. डिप्रेशन पीपल will do like that, मेरे से काम नहीं हो सकता. So what happens is, what happened that time, that positivity worked, जो श्री कृष्णा gave him, he the supreme. Yes, that is the thing, that is the thing. दूसरा example, yes, awesome, yes, very very true. Very true. हनुमान जी के पास शक्तियां थीं, वो कामयाब हो सकते थे, बट ही वॉज नॉट एबल टू रियलाइज दैट. उनको याद दिलाया गया था कि आप पवन पुत्र हैं, आप कहीं पर भी जा सकते हैं. एंड ही गॉट द रिजल्ट. ही गॉट द रिजल्ट. हमारे सामने रिजल्ट. हारा हुआ युद्ध जीत गए पांडव बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिविटी जो श्री कृष्णा ने उस समय दी उनको. मेरी बात आ रही समझ में? इट इज एज सिंपल एज दैट. अब क्या मैं वो पॉजिटिविटी ला पा रहा हूं अपने लाइफ में कि नहीं, ये मुझे देखना पड़ेगा, ये मेरे को देखना पड़ेगा और उस अनुसार मुझे कार्य करना पड़ेगा. यस, स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग. क्या रोक रहा है आपको? व्हाट इज स्टॉपिंग यू? What is stopping you? क्या मेरा आलस्य का संस्कार है? I am not up to the time, up to the mark. Fix one situation at a time. Fix one situation at a time. One by one, one by one. और करने से होगा, कृपा कहीं से नहीं आने वाली. मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार आई एम यूजिंग दैट वर्ड बिकॉज हमें क्या लगता है, कहीं हाथ दिखा दो, किसी से पूछ लो, कहीं से कोई आ जाए, कहीं से आशीर्वाद मिल जाए. यस भाई, इफ एट ऑल, मैं आपको वो भी कह रहा हूं, चलो इफ एट ऑल कहीं से कृपा बरस भी गई, कहीं से आशीर्वाद मिल भी गया, फाइनली वर्क तो आपको करना पड़ेगा भाई. खाना बन के आ गया, थाली में भी आ गया, उठा के खाना तो मुझे पड़ेगा ना. नहीं ना, वो भी कृपा बरस जाए कि भोजन भी मेरे अंदर शरीर में चला जाए. चलो वो भी अगर मशीन से हम डाल दें आपके अंदर, यस भाई, भोजन अंदर चला गया, उसको पचाना तो पड़ेगा आपको. वो तो कोई मशीन नहीं कर सकती, वो तो आपको ही करना पड़ेगा. यस, बात आ रही समझ में? तो आई एम मेकिंग दैट पॉइंट कि जस्ट टेक चार्ज ऑफ द थिंग्स. सिचुएशंस रहेंगी अपने स्थान पर. सिचुएशन पर अटकने के बजाय मुझे फोकस रखना पड़ेगा कि यस, व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू.
आ रही बात समझ में? जस्ट देखिए अपने पास, अपनी शक्तियों को देखिए, अपनी कमी कमजोरियों को देखिए, कहाँ से कौन सी चीज को आप यूज कर सकते हैं और रिजल्ट को जनरेट कर सकते हैं इस प्रकार से, एज सिंपल एज दैट. यस, मेक यस करना मुझे पड़ेगा. माई लाइफ इज माई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. द मोर आई वर्क ऑन माई सेल्फ, आप अटकना छोड़ दीजिए, सब काम हो जाएंगे. अब नाउ आगे जो बात अटक रही है, मैं वो कर रहा हूँ, कहाँ हम अटक रहे हैं. पहले तो हम बाहर अटक रहे हैं दूसरी बातों में, अब वहां से आ गए अपने ऊपर भी, अब अपने ऊपर भी कार्य कर रहा हूँ. यस, अब आई एम नॉट एबल टू फील दैट. ये नेक्स्ट ऑब्स्टिकल आता है. नेक्स्ट ऑब्स्टिकल व्हाट इज दैट? मैं काम कर तो रहा हूं, मैं अपने पर भी काम कर रहा हूं, बट आई एम नॉट एबल टू फील दैट कि आई विल बी एबल टू जनरेट रिजल्ट्स. मेरे ऊपर, अपने ऊपर ही विश्वास नहीं हो रहा, होगा या नहीं होगा पता नहीं. कर तो रहे हैं, देख तो रहे हो, कर रहे हैं. बट इफ यू आर नॉट एबल टू फील दैट, यू आर नॉट एबल टू रेजोनेट विद दैट, तो मैं आपको बता दूं, आपको फिर वो रिजल्ट नहीं मिलने वाले. यस, बात आ रही समझ में? Keep hydrating self. Yes, it is that clear. If you are not able to feel that, रिजल्ट नहीं है अभी, मैं आपको बता रहा हूं, रिजल्ट के बाद तो सब फील कर सकेंगे. यस, देखिए अब समझिए इस चीज को, मैं आपको बताता हूं. यस, वेरी ट्रू. अगर आप देखिए, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं. यूजुअली अल्फाबेट्स में क्या होता है? ए बी सी डी. व्हाट इज देयर? ए बी सी डी. नाउ ए इज अचीविंग. इस चीज को ध्यान से समझिएगा. ए इज अचीविंग. यू अचीव्ड समथिंग, अपनी लाइफ में हासिल कर लिया. यस. नाउ द नेक्स्ट इज बी. यू स्टार्ट बिलीविंग, यस अचीव किया जा सकता है. आ गया जोश बढ़ा, आपने अचीव किया, कुछ हासिल किया. यू स्टार्ट बिलीविंग, देन यू स्टार्ट कंसीविंग कि यस मैंने सोचा था कभी कि ये हो सकता है लाइफ में. इस वे में हम जा रहे हैं. गेटिंग माई पॉइंट? देन यू स्टार्ट कि ये मेरा ड्रीम था इसलिए ऐसा हुआ. ये अप्रोच, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज दिस अप्रोच, बट दिस इज अदर वे रॉन्ग. यस, ये अप्रोच नहीं होती लाइफ में. ये तो तुक्का लग गया हमारा. जैसे मान लीजिए हरभजन सिंह ने बैट घुमाया तो 6 लगा दिया, बट ही वॉज नॉट डेस्टिन्ड टू मेक दैट शॉट बिकॉज इज अ बॉलर, इज नॉट दैट गुड एट बैटिंग. गेटिंग माई पॉइंट? अब दूसरा जो अप्रोच होती है वो होता है DCBA approach. DCBA approach. What is it? Start dreaming about it. Yes? Start dream. Yes, मुझे ये करना है हासिल. Now you conceive that. What is conceive? Conception is आप उसको स्वीकार कर लो कि ये मैंने हासिल कर लिया है. That is conception. स्वीकार कर लो कि I have already achieved that. होगा नहीं, I have already achieved that. And start believing it. B, DCB. Then you will certainly achieve that particular thing. कोई या दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती. Yes, thank you. Thanks a lot. But it's all you amazing people. Because of you people, I am able to put my efforts into it. If you work on yourself, that is my biggest achievement. If you start generating results. So getting my point, तो आप ड्रीम कीजिए, whatever may be. What dream? कि I want to have 100K followers on my Facebook. Done. Money is flowing from Facebook into my account. Done. Start dreaming. Now start conceiving it. Conceiving it means
जैसे मदर के वूम में बेबी आ रहा है, दैट इज कंसेप्शन आ गया. नाउ दैट थॉट इज inside my head, I have conceived it. Yes, it has already done. Start believing it. Yes, I have conceived. You finally achieve. That is the way. Yes, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि पहले मैं अचीव कर लूँ, ABCD का अप्रोच हम ज़्यादातर लोग ये अप्रोच अपनाते हैं और कभी मिलता भी है, कभी कृपा बरस भी जाती है. अब जैसे मैं मान लीजिए बात करूँ, आपने किसी से पूछा कृपा का 8 की है, उसने बता दिया कृपा यहाँ 8 की है. अब कोई भी आपको मैं एक सॉल्यूशन दूंगा, उसके 50-50% चांस होंगे. 50% हो सकता है, 50% नहीं हो सकता है. तो जो 50% लोगों को सक्सेस मिलेगा वो कहेंगे अरे डॉक्टर गुरचरण ने ये बताया था तो हो गया, डन. अब वो मेरी तारीफ करेंगे, बड़ा सारा काम हो गया. दूसरे लोग भी मेरे पास आएंगे बिकॉज ऑफ गुरचरण, इट हैज हैपेंड. गेटिंग माय पॉइंट. और जो 50% लोगों को रिजल्ट नहीं मिले, उनके साथ क्या होगा, अब उनको मैं कहूंगा नहीं, योर प्रोसेस वाज नॉट करेक्ट, यू आर नॉट एबल टू फॉलो द थिंग्स इन योर लाइफ प्रॉपरली. आपने प्रॉपरली उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया लाइफ में, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग. यस, सो थैंक यू. प्रेम दीदी इज वॉचिंग अस. So thank you दीदी, thank you for coming in my life. आपका स्वागत है. Yes, so if you wish to, अगर आप देख पा रहे हैं तो अगर आप आना चाहें कैमरे में तो स्वागत है आपका. I'll be more than happy. मुझे खुशी होगी अगर आप ज्वाइन करते हैं लाइव और कुछ एक आप प्रेरणाएं सबको दें तो बहुत खुशी होगी, if it is possible. Yes, now the next thing is, जो बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ चीज़ें अटक रही हैं. मे बी शी इज नॉट, शी इज लेफ्ट. नो वरीज, जस्ट बी विथ मी, लेट्स सी. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट ओके. सो आ रही बात समझ में, कहाँ अटक रहे हैं. हम सिर्फ वो चाह रहे हैं कि कहीं से कृपा बरस जाए और मैं अचीव कर लूं, फिर मैं बिलीव करूंगा या फिर वो ABCD अप्रोच अपनाऊंगा. जबकि होना क्या चाहिए, स्टार्ट ड्रीमिंग. यस, मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस. राइट इट डाउन, कंसीव इट एंड बिलीव इट. यस, ये हो गया है, होगा नहीं हो गया है. अब द मोमेंट द लेडी गेट प्रेग्नेंट, व्हाट हैपेंस इज दे स्टार्ट बिलीविंग. यस, आज से कुछ समय बाद वी विल बी हैविंग बेबी. यस, इजंट इट. तो सिमिलरली ऐसा मेरे को अचीव करना, मेरे को बिलीव करना पड़ेगा. यस, होगा नहीं, हो गया है. एंड यू विल सर्टनली अचीव. कोई आपको रोक नहीं सकता आपके रिजल्ट जनरेट करने में. मेरी बात आ रही है समझ में. यस, अब आपको बिलीव ही नहीं हो रहा है, आप कंसीव ही नहीं कर पा रहे, तो कैसे होगा. यू वोंट बी एबल टू जनरेट द रिजल्ट्स. You would not be able to generate the results. अब उसके लिए नेक्स्ट चीज क्या करें. अब आपने बिलीव सब कर लिया. Now what is the next thing is, जिस पर आपको ध्यान देना है. वेरी इंपॉर्टेंट. What is that? Yes. राजेंद्र जी, आप आना चाहेंगे कैमरे पे. यस, यू वांट टू ज्वाइन मी ऑन लाइव. आप हमेशा ज्वाइन करते हैं, तो इफ़ यू विश टू शेयर सम व्यूज अबाउट इट, अगर आप इस बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आई विल सेंड यू द रिक्वेस्ट, यू एक्सेप्ट इट. यस, इफ यू विश टू, राजेंद्र जी. यस, ओके. सो व्हाट आई वाज शेयरिंग. अब आपने सब कुछ यहाँ तक आ गए. आप you start believing it, you conceived it. Now the what next thing is required, it's about self-care. What is that? अब आपने ड्रीम किया कि yes, I want baby in my life. Yes, husband wife dreamed about it, they conceived it, they believed it. Now what is required is self-care. The care of the mother, the care of that dream. हम क्या करते हैं,
दूसरे कह रहे हैं नहीं ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, तुम्हारा ऐसा, तुम्हारा वैसा. We get into that zone. We are taking advices from so many people. क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. अरे भाई, you believed it, you conceived it. Now where are you stuck? Take care of self. Appreciate self. अपना ध्यान दीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपग्रेड कीजिए, अपना सपोर्ट सिस्टम खुद तैयार कीजिए. बी अ सपोर्ट फॉर योरसेल्फ. आप अपने आप के लिए, स्वयं के लिए सपोर्ट बन जाइए. दूसरे से अपेक्षाएं मत रखिए कि दूसरा कोई सपोर्ट करेगा आपको. समझ पा रहे बात आप? अपना ध्यान दीजिए. हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, सोच का, हर चीज का टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. एप्रिशिएट सेल्फ. हम क्या करते हैं, हमने बिलीव भी कर लिया, कंसीव भी कर लिया, बट देयर आर सो मेनी शाइनी ऑब्जेक्ट्स. अब क्या कह रहा है, कोई कह रहा है कि आप ये खाओगे ना बहुत पावरफुल हो जाओगे और वो खाने के चक्कर में कई बार वी गेट इनटू सो मेनी ट्रबल्स. गेटिंग माय पॉइंट? टेक केयर. ये करना नहीं, ये करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए. यस, थैंक यू राजेंद्र जी. नो वरीज, नो इश्यूज. ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. वी गेट इनटू दैट जोन. तो बजाय इसके मैं क्या करूं, यस, तो वही मैं बात कर रहा हूं. सो यू शुड बी, इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, हमें क्या करना पड़ेगा? यस, आपको सिर्फ फोकस ऑन सेल्फ. बात वहीं घूम के आ जा रही है. फोकस ऑन सेल्फ, टेक केयर ऑफ सेल्फ, थिंक पॉजिटिव, बिलीव इन योर सेल्फ. यस, मैंने किया ना, आई हैव कंसीव्ड ना, आई विल सर्टनली डिलीवर. आई विल सर्टनली डिलीवर द रिजल्ट्स. यस, एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स. भाई आप सोचिए, कंसेप्शन के बाद माता पिता यही सोचते ना, हस्बैंड वाइफ की, यस अच्छा हेल्दी बेबी होगा. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल सो दैट वी स्टार्ट विजुअलाइजिंग द थिंग्स दैट वे. ये ऐसा ही हर एक ड्रीम के साथ होता है हमारे. इफ आई कंसीव मीन्स यस, दैट ड्रीम इज इनसाइड माई हेड एंड स्टार्ट बिलीविंग इट, टेकिंग केयर ऑफ सेल्फ. जब तक, कब तक खासकर ध्यान रखना है, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाए तब तक मुझे ध्यान रखना पड़ेगा. हस्बैंड वाइफ दोनों को. मीन्स अब इसमें हस्बैंड वाइफ क्या ले आए? हस्बैंड इज योर बॉडी, वाइफ इज योर इनर ऑरा, समथिंग लाइक दैट. I put it that way. I have never thought of this, but I'm just putting the things in front of you. मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ ताकि बात समझ में आए. Take care of self. Start day with positivity. Negativity आएंगे, distractions आएंगे. Don't focus on those things. जैसे कहते हैं ना, अभी सब सपोज करो कोविड आया. कोविड के समय पर सरकारें 3 बातें चिल्ला के सब जगह बोला जा रहा था. मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो, डिस्टेंसिंग रखो. मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो, डिस्टेंसिंग रखो. डन. जिसने पालन किया वो बच गए. जिन्होंने ज्यादा स्मार्टनेस दिखाई, दे गेट इनटू ट्रबल. इट इज एज सिंपल एज दैट. गेटिंग माय पॉइंट? तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, अब जैसे मान लीजिए अभी कोई भी आवाज आने लगे, अब मैं क्या करूं? अब मैं उधर ध्यान दे रहा हूं, कौन सी आवाज आ रही है? नो, मैं आ रही तो आ रही, ठीक है. जागरूक रहें. जागरूक रहना अपने, अब देखिए इसको कंफ्यूज नहीं होना है. जागरूक मीन्स अवेयर. अवेयर मीन्स, अब सपोज करो कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, तो यू शुड बी अवेयर दैट अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो आई शुड विड्रॉ माई सेल्फ. दैट हैज टू बी देयर अवेयरनेस. यस, बट डिस्ट्रैक्शन इज डिफरेंट थिंग. कुछ चीजें, डांस होने लगा, मैं भी डांस करने लगा. इफ सपोज अ प्रेग्नेंट मदर स्टार्ट डांसिंग विदाउट बीइंग अवेयर कि मेरा कौन सा समय चल रहा है, मुझे अभी कितना ध्यान रखना है, कितना नहीं रखना, तो क्या होने वाला है? विल शी बी एबल टू गेट द रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट्स? नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है. सो फोकस ऑन सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या चीजें ध्यान रखनी, क्या नहीं, खान पान, सब चीजें, एवरीथिंग. क्योंकि a single thought can poison your things. Even a single thought,
even a single thought. Even a single thought. Yes? Am I audible? Am I audible? Just a moment. Just a moment. At times, distractions are there with me also. Yes? Am I audible and visible? Okay. Awesome. Great. So, yes. So, welcome everyone whosoever is joining and wishing you all the very best. So, we were just discussing, हम discuss कर रहे हैं कि instead of getting distracted, instead of just getting into that zone कि ऐसा होगा वैसा होगा, भाई आपको सब मालूम है, just focus on the things कि ये करना है ये नहीं करना. अवेयरनेस अपने स्थान पर है, डिस्ट्रैक्शन अपने स्थान पर है. मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बट मुझे अपने आप को अवेयर रखना है कि यस, इस बात का मुझे विशेष ध्यान रखना है. सिंपल सी टर्मिनोलॉजी. बट प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम से होती है कि जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम इजीली कर लेते हैं, और जो हमें करना चाहिए उसके लिए मुझे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं. बड़ी समस्या है. क्यों की कारण है, देखिए इसको समझिए. अगर गाड़ी अपहिल जा रही है, आप चढ़ाई पर गाड़ी चढ़ा रहे हैं, तो चढ़ाने में एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, पीछे आने में एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे. आपने एक्सेलरेटर छोड़ा, ब्रेक छोड़ा, ऑटोमेटिकली पीछे आते जाएंगे. ऐसा ही है. कोई काम जो नहीं करना, इट इज ईजी नहीं करना, वो उधर की तरफ जाते हैं. जो काम नहीं करना होता, जो काम करना होता है उसमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं. तो एट टाइम्स थिंग्स बिकम डिफिकल्ट, वी फेस अपोजिशन. दैट्स वाई हमें लगता है कि नहीं, छोड़ो, नहीं हो सकता, हम नहीं कर पाएंगे. अपने आप को बोलना, यस ठीक है, वी हैव कंसीव्ड इट, वी आर बिलीविंग इट, नाउ द ड्रीम विल कम रियलिटी, ड्रीम विल मैनिफेस्ट फॉर श्योर. Yes? Am I making point clear? So ये सारा सीक्वेंस मुझे फॉलो करना पड़ेगा. सबसे पहली जो बात है और वही सबसे लास्ट बात है कि सारा फोकस बाहर से लाकर मुझे अपने ऊपर, I have to focus on myself. I have to focus on myself. और यही सबसे बड़ी गड़बड़ी, पहली और लास्ट हम यही करते हैं. हम दूसरे की बात को इंपॉर्टेंस सबको दीजिए, सबका रिस्पेक्ट कीजिए, सबका सम्मान कीजिए, सबको नमस्कार करिए. बट एक बार क्लियर हो गया, ये है, ये मेरा विजन है, ये मेरा गोल है, मुझे इसके लिए ये करना है, ये नहीं करना. यस? अब मुझे मालूम है सुबह उठ के मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे क्लियर हो गया. यस? बस एज सिंपल एज दैट. ऑसम, थैंक यू. द ब्लेसिंग्स ऑफ द सुप्रीम फादर. यस, you are manifesting. Getting my point? You are manifesting what you want in your life, and this is an additional chapter to that. Yes? और awareness also says, जागृति ये भी है कि if I am able to take good advice and implement it and delete the unnecessary advices which I am getting. मेरी बात समझ रहे हैं? अवेयरनेस एंड डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे. अवेयरनेस, यस ये करना है, ये नहीं करना है. जागृति, ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी कर दिया, नो. किसी ने आकर मेरे माइंड को स्पॉइल कर दिया, नो. एंड नेक्स्ट अवेयरनेस इज कि यस, इफ यू आर गेटिंग अ गुड एडवाइस कि यस ये कर सकते हो आप, इससे अच्छा होगा, you judge it and you start implementing. Yes, this will add more to my results. Getting my point? I am able to discriminate it. That is also awareness. Yes, this is important, this is not important. Yes? अब जैसे आप शादी में गए, अब शादी में आप सोच रहे हैं कि मैंने 1000 रुपये तो देना ही है, क्यों ना वसूल लिया जाए 1000 रुपये. तो सब चाट से शुरू किया, ये भी खाओ, वो भी खाओ, सब खाओ, और मालूम है कि मैं पचा ही नहीं पा रहा हूँ. आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट, मुझे मिल्क पचता नहीं है. आई एम इंटॉलरेंट, आई एम एलर्जिक टू दैट. बट क्योंकि मैंने पैसा दिया है तो मैं रबड़ी भी खा लूं जलेबी के साथ. क्यों? क्योंकि मुझे वसूलना है. यस, गेटिंग माई पॉइंट? सो ये नहीं, आई शुड बी अवेयर, यस ये करना है, ये नहीं करना है. इससे आई एम गिविंग यू वेरी सिंपल एग्जाम्पल जो रूटीन में होता है. कई बार हमें शादी में जाना होता है तो हम
2 दिन भूखे भी रहते हैं कि नहीं भाई पैसे पूरे वसूलने हैं। यस, नो, आई शुड बी अवेयर, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। यस, और जितना मैं अटेंशन दूंगा उतना सर्व प्रकार की टेंशन से मुक्त पिता परमात्मा बता रहे। यस, पिता परमात्मा बता रहे। और अगर मान लीजिए आप अटेंशन नहीं देंगे, चाहे गाड़ी चला रहे हैं चाहे अपने लक्ष्य की तरफ चेस कर रहे हैं, अगर अटेंशन नहीं दिया तो आज नहीं तो कल किसी ना किसी बात का टेंशन आएगा, एंड यू वोंट बी एबल टू अचीव योर गोल्स, मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। इट इज एज सिंपल। Is making point clear? Awesome, great. So that is the approach जिससे हम जहाँ अटके हुए हैं वहाँ से निकलकर हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। अब मैं इतना बता रहा हूँ आपको, इस बात को मान लीजिएगा, अगर मेरे जैसा बंदा पढ़ाई पढ़ के आज पढ़ा सकता है, मान लेना इस बात को, मेरे जैसा बंदा पढ़ाई पढ़ के पढ़ा सकता है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। समझ पा रहे बात आप? सो इट्स अ मैटर ऑफ फोकस, वेयर योर फोकस गोज योर एनर्जी गोज। सर चीजें वहां जाने वाली, समय भी जाएगा। और जैसे बच्चों का फोकस होता है कि यस आई विल बंक माई क्लास एंड मूवी देख के आएंगे, पूरी एनर्जी जाती है, कैसे निकलना है, कहाँ से निकलना है, कितना समय जाए, कैसे पैसे की व्यवस्था होगी, टिकट की व्यवस्था होगी, एवरीथिंग दे अरेंज। दैट हैपन्स। यस, अब मैं एक चीज आपको बता दूं। यस, आपको लग रहा है कि इफ योर थिंग्स गिव यू 1% रिजल्ट्स in few months, after that give us strength। मैं मान रहा हूं बात भाई, हर चीज को एक फल के लिए एक पहले फूल आता है, फूल के बाद वो फल होता है। हर चीज का एक प्रोसेस है प्यारे भाई और बहनों। मैं हर चीज को क्वांटिफाई नहीं कर सकता हूं कि भाई डॉक्टर गुरुचरण को 1 महीने में रिजल्ट मिला, मेरे को 2 महीने क्यों लग रहे हैं। हर एक फसल अलग है। एवरी क्रॉप इज डिफरेंट। किसी को 6 महीने में सब चीजें, पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब एक मच्छर है, उसकी लाइफ साइकिल इतनी सी है। डॉग की लाइफ साइकिल इज डिफरेंट, ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल इज डिफरेंट। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, मेरे को तो 1 महीने में आई वॉन्ट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। मे बी नॉट डिजायर्ड रिजल्ट्स, मे बी 1%, 2%। ओके, अब अगर आप उसको फोकस रखोगे, अब मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को समझ लेना। मैं भी कह रहा हूं कि मिलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं जिस दिन आप शुरू करो उस दिन मिलना चाहिए। अब इस चीज को आप दूसरे वे में हम देखते हैं। वी आर लुकिंग एट द अनदर एंगल। जस्ट सी दैट। क्या होता है, मान लीजिए मैंने सोच लिया कि मेरे को विद इन अ मंथ और 2 महीने में मुझे फ्लावर्स दिखने शुरू हो जाने चाहिए, मेरे फ्रूट्स के फ्लावर्स दिखना शुरू हो जाना चाहिए, मुझे कुछ रिजल्ट दिखना शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, नाउ दैट इज प्री कंसीव्ड इन माई माइंड कि 2 महीने में मुझे कुछ दिखना चाहिए। अब मैं उसको देख रहा हूं। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन माई एंड रिजल्ट। वेयर एम आई फोकसिंग? मैं कहां ध्यान दे रहा हूं? मैं ध्यान दे रहा हूं कि मुझे 1-2% रिजल्ट मिलना चाहिए 1-2 महीने में। अब अगर नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? मैं निराश हताश हो जाऊंगा। जबकि हो सकता है उस फसल का रिजल्ट ही मुझे साल भर बाद मिलने वाला है। मैं 2 महीने में चाह रहा हूं 1% फल। मेरी बात समझ रहे हैं ना? पहले आप डिसाइड कर लो कि क्या करना है। पहले ड्रीम, मैंने वो अप्रोच बताई, ड्रीम, देन कंसीव इट कि यस मुझे मिलेगा। अब किस चीज का मुझे मालूम है? मुझे फसल का मालूम है, गेहूं इतने समय में मिलेगी, पैडी इतने समय में मिलेगी, मेरे को बैम्बू इतने समय में मिलेगा, सबका पता है। अब जो कि सक्सेस का मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं प्री डिटरमाइंड कोई भी चीज माइंड में कंसीव नहीं कर सकता हूं।
बट वो भी अगर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर लीजिए कि इतने दिन में आई स्टार्ट अचीविंग इट। गेटिंग माय पॉइंट? वो फिर गोल सेटिंग का एक अपन अलग सेशन लेंगे, फिर उस पर अलग बात करेंगे। बट आई एम शेयरिंग कि कहाँ हम अटक रहे हैं जिस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब अगर मान लीजिए मैं 1-2% पे अटकाऊं कि मुझे 1-2% कुछ मिलना चाहिए, तो क्या होगा? अब मैं 1-2% पे ही गाड़ी अटकी है। अब अगर वो नहीं मिलेगा ना तो क्या होगा? तो मेरी आगे गाड़ी बढ़ेगी नहीं, मैं वहीं अटक गया हूं। अब मैं और चीज बता दूं आपको, अगर आप कहीं ट्रैफिक सिग्नल्स पर रुके हों तो ऐसा नहीं होता कि एक यूनिफॉर्म टाइम है ट्रैफिक सिग्नल का कि इतने समय बाद ग्रीन हो जाएगी। क्या होता है, किसी जगह तो कम टाइम होता है, मे बी 15 सेकेंड इज रेड देन ग्रीन। किसी जगह 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट भी रेड सिग्नल होता है। गेटिंग माई पॉइंट? अब रेड सिग्नल है दैट डजंट मीन कि कभी ग्रीन नहीं होगा, और ग्रीन सिग्नल है दैट डजंट मीन कि कभी रेड नहीं होगा। आइदर वे। यस, एम आई मेकिंग पॉइंट क्लियर? Yes, thank you. Thank you for sharing and thank you for being with me. Thanks a lot. Wishing you all the very best. Yes, maybe this effort will help people out there to get their dream result, and you will get blessings out of it. Yes, we are helping people out. तो मेरी बात समझ में आ रही है? जब मैं प्री डिटरमाइंड स्टेट में रहूंगा, नहीं मुझे तो ऐसा ही होना चाहिए, दिस वे इफ इट इज गोज, तो मुझे लगेगा सब कुछ ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ, यस, आप गोल सेटिंग कीजिए, अपन उसका फिर एक सेशन बनाएंगे। बट अगर उसके अनुसार नहीं कुछ बात हो पा रही है तो निराश हताश मत होइए। आज नहीं तो कल मुझे मंजिल अवश्य मिलेगी। यस, आगे बात समझ में, अवश्य मिलेगी। ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करें। कोई बात नहीं। एक बात बताता हूं, लोगों को पुराने समय में मकान बनाने में जीवन गुजर जाते थे, पूरी लाइफ। आज के समय पर लोन लेकर हम जल्दी बना लेते हैं मकान, लाइफ भर पे करते रहते हैं। बात तो उतना ही है ना। या तो ये है कि पहले इकट्ठा कर लो और फिर अपना मकान बनाओ। उसके विपरीत क्या है, क्या इकट्ठा तो हमने किया नहीं है, हमने क्या किया, हमने लोन ले लिया है और लोन लेके हम बना रहे। बात तो वही है। लोन में हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, बहुत सारा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इफ यू आर टेकिंग होम लोन, आई टेल यू, आपको 20 साल में, 25 साल में ऑलमोस्ट डबल पैसा देना पड़ेगा। अगर आपने 30 लाख लोन लिया है तो आपको 60 लाख रुपए रिटर्न करना पड़ेगा बैंक को। और वही अगर 30 लाख आप अर्न करने तो 30 लाख रुपए में आपका मकान बन जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो इट्स ऑल डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो बजाय इसके कि हम इसमें अटक जाएं, ऐसा नहीं हुआ तो मतलब मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं है। ऐसा प्री कंसीव कुछ मत बनाइए। अगर आपने गोल भी सेट किया कि मुझे साल भर में रिजल्ट चाहिए और साल भर में नहीं मिला, कोई बात नहीं, हो सकता है 1 साल 5 दिन में मिलने वाला हो और हम 1 साल में ही छोड़ दें एफर्ट लगाना। और आपने द मोमेंट एफर्ट लगाना छोड़ा, क्या होगा फिर? आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्विटिंग इज द ओनली प्रॉब्लम जिसको मुझे ओवरकम करना है। कोई बात नहीं, करते रहिए ना, लगाते रहिए एफर्ट्स और देखते रहिए कि यस, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे एफर्ट्स कहीं गलत एनर्जी के साथ लग रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है गलत डायरेक्शन में लग रहे हैं। मुझे चलना तो है बट दिल्ली के बजाय मैं बॉम्बे की तरफ चल पड़ा हूं। हर चीज को मुझे एनालाइज करना पड़ेगा। मैं जस्ट इतनी बात कह रहा हूं कि हम अटक कहाँ रहे हैं और मुझे निकलना है और मुझे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। आज नहीं तो कल मंजिल मिलेगी। अब मैं आपको बता दूं, अब आप चाहे पैदल चलना शुरू करो, चाहे साइकिल पर चलो, चाहे बाइक पर चलो, चाहे आप ट्रेन पर चलो, चाहे प्लेन पर चलो, आप मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे अगर आप चलते रहे। समय जरूर आगे पीछे हो सकता है बट आप पहुंचेंगे जरूर। अगर आपने चलना छोड़ दिया फिर आप प्लेन से भी नहीं छूटेंगे। होता है कई बार प्लेन के लिए मौसम, जहां उतरना है, लैंड करना है, वहां पर मौसम ठीक नहीं है, उसको पहले ही उतार दिया जाता है कई बार।
दूसरी जगह पे उतार दिया जाता है क्योंकि जहाँ जाना है मौसम ठीक नहीं है। आप क्या करेंगे, आप नहीं पहुंच पाएंगे। अब मैं तो प्लेन पे बैठा हूँ, क्यों नहीं पहुंच रहा? नहीं भाई, इवन द फास्टेस्ट स्पीड आपको उतरना पड़ेगा पहले। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप बस अटकिए नहीं, निरंतर लगातार प्रयास करते रहिए। यस, ऑब्वियसली आज नहीं तो कल अवश्य मुझे मंजिल मिलेगी, अवश्य मिलेगी। ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। यस, पैदल भी चलेंगे। पुराने समय में पैदल ही चलते थे ना, पैदल चलते थे। कोई घोड़े पे चल रहा है, कोई पैदल चल रहा है, ऐसे। अब वहाँ कौन सा प्लेन थे पुराने समय पे? राजाएं महाराजे इधर से उधर जा रहे हैं, कौन से शहर से फलां शहर, ठीक है। आप सोचो कितनी डिफिकल्ट हुआ कर। अभी तो हम यहाँ से वहाँ जाना है, तुरंत में प्लेन में बैठो पहुँच जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा में इंडिया में किसी भी जगह पर। यस, बस करना ही है मेरे को। कब तक नहीं मिलेगी मंजिल? मैं एक बात बता दूं, इसको अदरवाइज नहीं लेना कि मैं प्रमोट कर रहा हूं, बट जो बच्चे अपनी चीज के लिए जिद्दी होते हैं उनको अवश्य मिलती है चीज, उनको सक्सेस जरूर मिलता है। बस पीछे पड़ गए, मम्मी मेरे को चाहिए तो मतलब चाहिए, कहां से लाके दो। ऐसे ही आस्क यूनिवर्स, मेक योर ड्रीम बिग। आस्क यूनिवर्स, आई वांट दिस पर्टिकुलर थिंग इन माय लाइफ। कहां से आएगी, कैसे आएगी, वो मत सोचो, वो मत सोचो। अब बात आज हम कंसेप्शन की कर रहे थे, बट इफ वी थिंक ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन, इफ वी थिंक ऑफ प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन, क्या हम स्वीकार कर सकते हैं कि कैसे सारी चीजें तैयार होती हैं, कैसे एक बेबी तैयार हो रहा है। एवरीथिंग इज सो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कैसे होगा, क्या होगा, मुझे नहीं, मुझे आई वॉन्ट, हस्बैंड वाइफ सेज आई वॉन्ट बेबी, इट्स एज सिंपल एज दैट। इसी प्रकार से आपने ड्रीम को मत सोचो कैसे होगा, क्या होगा, कैसे क्या का पेरेंट की प्रॉब्लम है। बच्चे ने कह दिया कि मुझे ये फलां ड्रेस चाहिए, मुझे फलां खिलौना चाहिए, और मुझे नहीं मालूम कहां से आएगा, कैसे आएगा। यस, अब ये दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए मैं उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूं। अब कैसे गोल्स को अचीव करना है, दैट इज नेक्स्ट लेवल थिंग। बट जस्ट मैं कहीं हटकू नहीं, मैं अपने पर फोकस रखूं। आज नहीं तो कल मुझे अवश्य मिलने वाला है, वट एवर आई कंसीव इन माई माइंड। यस, अब ये टॉपिक दूसरा है सोमा जी, यस, बट थोड़ा सा मैं यहां ऐड कर देता हूं। जैसे अब ये कैमरा सामने लगा है मेरे, कैमरा सामने लगा है मेरे, आप इस कैमरे को देख पा रहे हैं। इसको स्थिर किस प्रकार से किया गया? आई हैव पुट अ स्टैंड ओवर इट, एंड स्टैंड पर मैंने इसको फिट कर रखा है। अब अगर इसी को मैं हाथ में पकड़ के ऐसे यूज करूं तो क्या होगा? वो स्थिर नहीं रहेगा, हिलेगा, आप देख नहीं पाएंगे, ये सारी समस्याएं होंगी। यस, इसी प्रकार से मन की स्थिति है। मन को मुझे स्टैंड पर फिट करना पड़ेगा। मीन्स कोई एक मुझे एक स्ट्रक्चर पर आना पड़ेगा। स्ट्रक्चर इन द सेंस, मन ऐसा करना है, ऐसा सोचना है। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, हमने मन को ऐसे ही छोड़ रखा है। क्या आप बताइए, आपने मन को कभी ऑर्डर दिया है? ऑर्डर दिया है? आप बताओ। एक टाइम दिया होता है, मैं आपको बताता हूं। जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं ना, तब एक सटल सूक्ष्म में अंदर ही अंदर ऑर्डर जाता है मन को कि तेरे पास 3 घंटे हैं, 3 घंटे में एग्जाम पूरा करना है। मन नहीं भटकता है, यूजुअली नहीं भटकता है, स्थिर रहता है मन ज्यादातर। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो अलग बात है, बट यूजुअली वहां मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि वहां मन को पता है कि मुझे एग्जाम देना है और मुझे क्लियर करना है। ऐसे ही अगर रोज रूटीन में मैं एक स्टैंड बना दूं, मन आज ये सोचना है, ये स्टैंड है आपका, हिलना नहीं है। आज सबको आप पॉजिटिव सोचोगे सबके बारे में, आज सबको खुशी दोगे। दिस इज द स्टैंड जिस पर आपको स्थिर रहना है। मन को दे दो सुबह उठते से थॉट, मेरे मन, मेरा है ना मन, आज यही करना है। ऐसी गोल्स की बात है। मन तुम्हें भटकना नहीं है, मुझे जब तक लक्ष्य ना मिले तब तक इसी बारे में सोचना है। इसलिए पिता परमात्मा कह रहे हैं, बच्चे मन माना भव।
मन को मना लो अपने, जैसे बच्चों को कर देना, कोई बात नहीं बच्चे, अभी है ना एग्जाम है, एग्जाम दे लो, फिर अपन छुट्टी पे चलेंगे, वहां घूमने चलेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। ऐसे मन को समझा के ना, क्यों भटक रहा है, क्यों परेशान हो रहा है, बैठ जा, टिक के बैठ, सुन, टिक के बैठेगा तो तेरे को भी आनंद आएगा, मुझे भी आएगा। तो दीज आर द वेरियस टेक्निक्स जो हम यूज कर सकते हैं। ऑर्डर देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बैठे मोबाइल ही सर्फिंग कर रहे हैं, छोड़ दिया। आप खुला छोड़ देंगे बच्चों को तो वो भी कुछ भी करेंगे, उनको एक ऑर्डर देना पड़ेगा। सिमिलरली मन को भी ऑर्डर देना पड़ेगा, उसको स्टैंड देना पड़ेगा जिस पर वो टिका रह सके। यस, आधार, तो पॉजिटिव थिंकिंग का आधार, जिससे हम निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं और अपने आप को शक्तिशाली, पावरफुल बना सकते हैं। दिस वे वी कैन वर्क ऑन आवरसेल्फ, अपने आप पर कार्य करके निरंतर, एवरी डे वी कैन मूव अहेड, एंड आई एम ट्राइंग कि एवरी डे आई शुड ब्रिंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स, जिससे आपको मुझको सबको शक्ति मिलती रहे। तो मैं यही कहूंगा कि क्या होता है कि द मोर यू लिसन टू इट, अभी क्या हो रहा है, हम नेगेटिविटी सुन रहे हैं, टीवी खोला नेगेटिविटी, नाटक देखा नेगेटिविटी, सब जगह नेगेटिविटी, मोबाइल, व्हाट्सअप, ये वो नेगेटिविटी। अब मन टिकेगा कहाँ, मन भटक रहा है। उसको टिकाने के लिए अगर इस जोन में हम ऑरा में आए, आई एम गिविंग यू द पॉजिटिव एनर्जी, रिसीव एवरीथिंग। यस, अपने आप को टिका लीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूं, आई एम कमिंग एवरी डे। इफ यू कैन टेक आउट टाइम, अगर आप निरंतर समय निकालिए, आइए सुनिए, पुरानी रिकॉर्डिंग्स पढ़िए फेसबुक पे, जो आपको लगता है कि यस आपको इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट कीजिए, फोकस ऑन दैट। आज नहीं तो कल अवश्य रिजल्ट मिलेगा। यस, सो होप आई एम मेकिंग पॉइंट क्लियर। तो कहीं भी अटके नहीं, निरंतर एवरी डे आगे बढ़ते रहे। द मोर आई मूव अहेड, जितना हम आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब मैं आपको बताता हूं। यस कृष्णा भाई, डन, इतना कार्य होगा ना, अगर आपने शुरुआत अच्छी कर ली, इट्स हाफ वे डन। जैसे मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूं, तो सीढ़ी मैंने एक स्टेप चढ़ा है, मैंने एक स्टेप रखा है। अब मैं कहूं मेरे को तो कुछ रिजल्ट मिला नहीं है, नहीं, यू हैव मूव वन स्टेप अहेड। आप एक स्टेप ऊपर गए, फिर आपने एक स्टेप रखा। अब मैं छत तक तो पहुंचा नहीं, छत तो बहुत दूर है, नहीं, अब आप 2 स्टेप छत के करीब हो गए, धरती से थोड़ा ऊंचा उठे, 2 स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, 5वां स्टेप। कंसिस्टेंसी विल मेक यू रीच टू योर गोल। आप छत तक अवश्य पहुंच पाएंगे। यस, एंड डेली रूटीन, जो भी डेली फोकस करते हैं उनको अवश्य रिजल्ट मिलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अवश्य मिलते हैं। एक अप्रोच होती है कि एग्जाम टाइम में थोड़ा बहुत पढ़ो और जितने मार्क्स आए, और जो लगातार रूटीन बना के काम कर रहे हैं रोज, आज नहीं, कोई सफलता प्राप्त करने से दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती अगर आप फॉलो कर रहे हैं अपना डेली रूटीन। आई टेल यू। यस, और फिर भी कहीं अटकते हैं तो कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं यहां पर, आई एम विथ यू ऑलवेज, जस्ट यू हैव टू बी विथ मी। यस, और बेस्ट पार्ट है कि आपको आना नहीं, ऐसा नहीं घर छोड़ के मेरे पास आना है, आप अपने घर में रह के अपने सब काम करते, यू कैन टॉक टू मी, यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज कि यस आई एम स्टक हियर, हेल्प मी आउट। तो निरंतर अपने ऊपर कार्य कीजिए। Everyone should start working on it. The best part is, कृष्णा भाई, you have to work on ourselves. अपने ऊपर कार्य करना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं रखिए, सबका कल्याण हो रहा है, बट फोकस ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन योर अपलिफ्टमेंट। अपने आप को आगे बढ़ाने पर आपका फोकस रहना चाहिए, निरंतर, एवरी डे। यस, दैट हैज टू बी द फोकस। आज नहीं तो कल अवश्य रिजल्ट मिलेगा। यस, सो होप आई एम मेकिंग पॉइंट क्लियर। तो हम अटके नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहे, हमें सफलता अवश्य मिलेगी हमारे जीवन में। तो ये सारी बातें को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए और अपने आप को निरंतर आगे बढ़ाते चलें, और हम
अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे और हम अवश्य अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकेंगे। यस, तो और कोई क्वेरीज? तो आई विल बी हियर फॉर कपल ऑफ मोमेंट्स। यस, दैट इज ओके, बट इट स्टार्ट विथ सेल्फ। अपने आप से स्टार्ट करना पड़ेगा। यस, अपने आप से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। यस, आई विल ट्राई टू अपग्रेड। मैं निरंतर कोशिश करूंगा कि सो दैट आई विल ट्राई टू अपग्रेड यू as much as I can. Hope you got some value out of it. If it is there, so you can comment TWS. Yes, time well spent. अच्छे से समय बिताया हमने। चाहते तो हम टीवी देख सकते थे। तो इट्स योर कमिटमेंट। देखिए, मेरा तो काम यही है, मैं ही कर रहा हूँ, बट आप मेरे साथ हैं। दैट शोज यू वांट टू ग्रो। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए सब बातें छोड़कर, मोबाइल का अट्रैक्शन छोड़ के आप अपने मोबाइल पर यू स्टिक टू इट। आप रुके तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं आपके प्रति रखते हुए मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं आई पे माई रिगार्ड्स टू यू कि आप मेरे साथ हैं, ताकि मैं पूरी एनर्जी दे पा रहा हूँ। जस्ट बी विथ मी। सो आज नहीं तो कल हम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुँचेंगे। जो भी आपका लक्ष्य है, चाहे हेल्थ वेल्थ करियर रिलेशनशिप है, चाहे इससे ऊपर का भी आपका लक्ष्य है कि यस मुझे उस हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है। यस, तो वॉट एवर योर ऑसम, ग्रेट। थैंक यू रमेश जी, थैंक यू। यस, ओके। तो जो भी आपका लक्ष्य है आप अवश्य प्राप्त करेंगे। मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ अपनी तरफ से। बस निरंतर मुझे प्रयास करना पड़ेगा। निरंतर हम करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल अपने लक्ष्य तक हम अवश्य पहुँचेंगे। और आपका स्नेह, प्यार, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, आपका सपोर्ट जो मुझे मिल रहा है, मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से आप मुझे स्नेह प्यार देते रहेंगे तो मैं और एनर्जी के साथ और नए प्रकार की बातें जिससे हम आगे बढ़ सकेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। यस, सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। और रमेश जी आज लेट हो गया। यस, सो इट्स योर एनर्जी। आपकी एनर्जी है जो मुझे एनर्जी दे रही है। तो हमारा लक्ष्य सभी का ये है कि हम अपनी एनर्जी से पूरे विश्व भर में वो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करें ताकि सबकी समस्याएं दूर हो जाएं। सब पिता परमात्मा से शक्तियां लेकर निरंतर आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभ भावनाओं, शुभकामनाओं के साथ कार्य कर रहे हैं हम, और आपके स्नेह प्यार से, दुआओं से निरंतर हम आगे बढ़ते रहेंगे। और इसको जितना अगर आपको लग रहा है कि यस आपको कुछ बेनिफिट रिजल्ट मिल रहा है, आपको कुछ अच्छा अनुभव हो रहा है, तो ये जरूर एक रिक्वेस्ट है कि आप जरूर शेयर करेंगे। तो उससे क्या होगा, हो सकता है आपकी वजह से दूसरों को भी प्रेरणाएं मिल सकती हैं, किसी को हेल्प हो सकती है। तो दिस विल ऐड यू टू योर अकाउंट ऑफ ब्लेसिंग। आपकी ब्लेसिंग्स के अकाउंट में ऐड होगा और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में और मदद होने वाली है। यस, सो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच के उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे पिता परमात्मा से शक्तियां लेकर। सो दिस वे वी हैव टू वर्क ऑन आवर लेवल। यस, सो अगेन थैंक यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। आपको बहुत बहुत थैंक्स, आप आए, इतना समय दिया आपने। तो हम निरंतर पुरुषार्थ करते रहेंगे बिकॉज आई हैव वन अनदर सेशन नाउ। सो आई हैव टू बी इन दैट जोन। तो आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। सो वील कंक्लूड हियर। आज हम समाप्त करते हैं यहाँ पर। आशा करते हैं इस बात को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। और प्लीज़ कोशिश कीजिए, आपके कोई ब्रेक थ्रूज हैं, विन हैं आपने इसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़े, आपको कुछ प्राप्ति हुई तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि मैं कोशिश करूं उसको और अपग्रेड करके आप तक पहुंचा के, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकें। तो अगेन ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट। यस, तो कीप स्माइलिंग, कीप हेल्पिंग। Thank you once again. All the very best. Take care. And please do comment
जो भी आपकी बातें हो, आई विल बी मोर देन हैप्पी फॉर दैट. Yes, all the best. Take care. Good night.